सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी भूमिका निभा रहे पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री स्वरूप कुमार साहा ने आज चंडीगढ़ का दौरा किया, जिसके तहत उन्होंने पहले 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बिजनेस के साथ एयरपोर्ट रोड मोहाली स्थित नई शाखा का उद्घाटन गणमान्य ग्राहकों की उपस्थिति में किया। इसके अलावा उन्होंने एफजीएम ऑफिस चंडीगढ़ में क्रेच फैसिलिटी, पीएसबी केयर नेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फूड और एग्रो सेक्टर, पीएसबी कनेक्ट अकाउंट प्रोसेसिंग सेंटर का शुभारंभ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर श्री विवेक श्रीवास्तव, एफजीएम चंडीगढ़ श्री चमन लाल सिन्हमार, सीजीएम श्री राजेश चंदन पांडे, महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार और चंडीगढ़ के जोनल मैनेजर श्री कुलदीप सिंह व समस्त स्टाफ की मौजूदगी में किया। इसके उपरांत श्री स्वरूप कुमार साहा ने पंचकुला में एक टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित किया, जिसमें 1200 से अधिक बैंक के स्टाफ ने भाग लिया। चंडीगढ़ से मोहन सिंह की रिपोर्ट। I, Mehak Kataria, extend a warm, heartfelt welcome to all our distinguished dignitaries. Honorable MD and CEO Sir, Mr. Swaroop Kumar Saha ji, CGM Sir, Mr. Rajesh Chandan Pandey ji, respected GM Sir, Mr. Manoj Kumar ji, respected FGM Sir, Mr. Chaman Lal ji, respected ZM Sir, Mr. Kuldeep Singh ji, and our esteemed guests, valued customers and colleagues. Today is a proud and significant day as we gather here for the inauguration of 24th branch of district SAS Nagar, reach and commitment towards our bank's birthplace, Punjab. Here, a very important question arises. Allocation. It is a strategic growth corridor. Its close proximity to the international airport makes it ideal for the business travelers, NRIs, exporters and corporate clients. The area is surrounded by a fast-growing industrial hub which includes manufacturing units. Opportunities in mind, Punjab and Sindh Bank has chosen Airport Road Mohali the right place. Ladies and gentlemen, we now proceed to the lamp lighting ceremony. The lamp symbolizes knowledge, prosperity and new beginnings. Welcome to our respected MD and CEO sir, respected CGM sir, GM Mr. Manoj Kumar Maurya ji, esteemed dignitaries, valued customer and dear colleagues. To have the gracious presence and inspiring leadership of our respected MD and CEO sir, whose vision continue. Airport Road has emerged as prominent commercial and business corridor of the Tri-City, offering vast potential across retail, MSME and the branch reflect the new branch strength bank presence by the belief where service is the way of life. We remain dedicated to serving customer with care and excellence. We assure our customer one of its kind to distinguished guests, valued customer and stay. And Sat Sri Akal, Mr. Rajesh Pandey, CGM HR, Chaman Lal, FGM, Mr. Manoj, other colleagues from the Chandigarh FGM office,
It's really a great pleasure for me to be invited to open this and inaugurate this new branch at Airport Road at Chandigarh. And I'm very happy to find that this branch is getting inaugurated with a big bang of 1,000 crores of business. So many compliments to all of you for having made this possible. I know getting business is very challenging in this environment, but yet the team Punjab, the team FGM office of Chandigarh are putting a lot of efforts to grow business in this area, in the state, and I'm very sure all of you are contributing to that. So many congratulations for that. In fact, I was recollecting the background of opening this branch. I off and on travel to Chandigarh for various reasons, and one day we were discussing while traveling to the airport with your FGM that why not, this looks a very upcoming area, why don't we explore a possibility of opening a branch. I think that was about a year ago maybe. So I'm very happy to find that all of you and under the leadership of Mr. Chaman Lal took that input as just as an input, as a suggestion, and you actually found out that there's a lot of potential in this area and to open this branch. So this is a landmark day for the bank, wherein we are opening this branch with 1,000 crores of business. The bank is now in a progressive path, transformation path. The bank has now taken a lot of initiatives to transform its various initiatives. And of course, we will discuss this in the evening meeting that has been scheduled for us, wherein we will discuss in detail. But the point is that the bank is now in a transformation period. It is going through a lot of transition and is going on an expansion mode, not only in growing business but also expanding its network to various areas of the country. Punjab is, of course, our heart of the bank is in Punjab, and we know the importance of the state of Punjab. So there are a lot of scope for rationalization of branches, a lot of scope for expansion of branches, expansion of zonal offices. We just had a very good inauguration event in Moga really recently, where a zonal office has been inaugurated, and with a lot of energy. I find a lot of energy has come into the team of PNSB to build this bank and be competitive and along with any other bank in the country. Punjab and Sindh Bank happens to be the third largest bank in the state of Punjab. We are 40% of the network of the bank in the state of Punjab. So there are a lot of potential in this area in view of the great legacy of this bank in the state of Punjab. So I'm very happy that all of you are together in this journey of transformation. A lot of more things will be done. More zonal offices will come, more offices will come up. We are expanding, we are trying to expand, having more than at least 200 branches in the next 1 year all across the country. So all these will add a pan-India network. We'll have more zonal offices, more FGM offices. So a lot of structural changes are going to happen. Well-located branch and provide customer service. Congratulations, sir. हाँ जी सर। Respected MD and CEO sir, CGM sir, FGM sir, GM sirs, distinguished guests, esteemed customer, colleagues and friends. A very good morning
Namaskar, Sat Sri Akal ji. On behalf of Punjab and Sindh Bank Zone Chandigarh, it's my proud privilege to extend heartfelt gratitude to you for all gracing this auspicious occasion, the inauguration of our Airport Road branch, Syed Ajit Singh Nagar ji. First and foremost, I express my sincere gratitude to our respected MD and CEO Sir, Shri Swaroop Kumar Saha ji, for graciously sparing his valuable time and inaugurating this new branch. His presence and inspiring leadership have truly motivated all of us and added great significance to today's ceremony. As already said, this is our 24th branch in district Mohali, and this is a commitment towards the Punjab that we are now expanding towards this vibrant city. I also extend my heartfelt thanks to CGM Sir, GM Sir from Head Office, FGM Sir, and all other senior officials for their guidance, encouragement, and continued support, which have instrumental in strengthening the bank's presence and outreach in this vibrant region. My sincere appreciation goes to our valued customers and well-wishers who have joined us today. Your trust and confidence in Punjab and Sindh Bank really inspire us to continuously improve and serve you better. I would like to place on record my appreciation to the efforts of branch manager Shri Bhupinder Singh ji and his entire team, and for conversing 1,000 crore business and opening this branch before the scheduled time.
यस सामने देखो एक मिनट आ गया Good. Congratulations. You are playing a very important role. I, Bhavya Trehan, welcome you all on behalf of PSB Connect CASA Account Processing Center to the inauguration of this visionary initiative of PSB Connect CAPC. Respected Shri Swaroop Kumar Saha ji, MD and CEO, Shri Vivek Srivastava ji, Regional Director, Reserve Bank of India, Shri Rajesh Chandan Pandey ji, CGM HRD, Shri Manoj Kumar ji, GM Project Management Office, Shri Chamanlal Shimar ji, FGM Chandigarh, Shri Karamjeet Singh ji, DGM, Shri Kuldeep Singh ji, Zonal Manager Chandigarh, Shri Lokesh Kumar ji, in charge PSB Connect CAPC, all the senior executives of the bank, and my dear colleagues. We are truly honored to have such distinguished visionaries with us today. Thank you for gracing us with your valuable time, and your presence adds great value. And Manoj Kumar ji, GM, Project Management Office, to kindly enlighten the gathering with a few words. Thank you, respected CGMs, FGM sir, and all dignitaries and colleagues. A warm welcome and good afternoon to all of you. Please come around. It is my privilege to be a part of this inauguration of our CASA Account Processing Center. This is PSB Connect, a significant step towards centralization, standardization, and operational excellence in the account opening process. Till date, the bank has successfully opened 1.4 lakh accounts with the different channels that is tapped to reflecting the strong efforts of our bank branches and team. This whole team are very thankful. The establishment of the account processing centralized framework will enable better KYC repository management, improve data accuracy, and effective data extraction, allowing us to generate meaningful insights and trigger business leads in timely manner. More importantly, this initiative aligns with our vision of process efficiency, digital MD of Punjab Sind Bank, Mr. Sahaji, Rajesh Pandey ji, CGM HR, and the field team from here, Chaman Lal ji, many of you who sit in central office, Manoj and others of the team whom I frequently interact, Brigadier Datta who has just joined the bank in a different capacity, and all of you who are here. Now I haven't come with a pre-prepared speech, so whatever comes is going to come from my heart, and therefore it's the truth which I feel. Joining Punjab Sind Bank on the board was an honor for me more than a year back in December 2024, and let me share the way Reserve Bank works. No one tells you you are going to get on the board, and no one tells you when you are going to get chucked out of the board. You get just a letter, or actually it's the board secretary who suddenly rings you up, welcome on the board, and you are at a total loss as to what has happened. That happened to me, sir, when I went to additional director on the board of Lakshmi Vilas Bank.
It's the company secretary who called up, and for 1 minute I was very confused which board, what is happening. Later on I came to know that Reserve Bank had nominated me on the board. This time, because RLK Rao is a personal friend, so he briefed me beforehand. Now when we go on the board of a bank, being a regulator, we have our own concerns, we have our own anxieties. One of the biggest concerns and anxieties we have is about the top management of the bank, the whole-time directors, and then the senior management, how they are running the bank. After all, we have all been witness to unfortunate events which happened prior to the asset quality in 14. So first thing naturally we will do is we will talk to a few people outside the bank who we feel may have some information about the bank, the bank's management. Whatever feedback I got, I feel very relieved. A year, I can say I'm happy. And Again, I'm very happy to announce the formal inauguration of this CASA back office. First of all, I must express my gratitude to Sir for having said those motivating words. Expectations of the regulator is very high nowadays, and to match those expectations is very important for all of us to have a sustainable business growth and compliant growth. So while we try to do our best, certain things are left out in our bona fidely, but we still have to improve. There are a lot of catching up is required, and thank you, sir, for supporting us in whatever way you have been supporting us through the various forms, whether as a member or as personal advisors. And so the team, I'm telling you, sir, it is the team P&SB which is now really geared up. CASA back office has been a project which we thought, when I joined the bank, sir, in this bank, when I used to visit branches, I found that some of the gaps that were quite visible when I used to interact with the branch officers who are opening accounts, whether it's a desk officer or otherwise. Having a branch before this, Panchkula, no? Sector 5. Sector 5, Panchkula. Doing some interaction with you through this system. There will be a scanner code that will come. Okay, you will scan. It will be automatic on the screen.
the collective poll, okay, whatever you are saying will be on live on the screen. Okay, there is no name that will be captured, don't worry, no accountability, huh? No apartheid marks, simple heart to heart, whatever you feel, right? So I will be having this. The scan can be done by the back end also. What do you think contributes the most to our bank becoming stronger? आपका क्या feeling है? Scan, ये जो scanner है, ये तो scan करो और अपना answer डालो. I will wait for a few seconds. Abhishek, numbers are not coming. 378 so far. चार सौ चार लोग बहुत सोच रहे हैं, अरे गलत आंसर देंगे तो क्या हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकता है, 500 लोग तक पहुंच गए, अब तक स्कैन नहीं हो रहा है कंट्रोल में. So that is the answer of the pool here. He says strong customer service is the most important. 63% of the 750 here feel 63% is service. Customer service is 26% is important. Why are your customers become silently dormant? What? नमस्कार, मैं स्वरूप कुमार साहा, पंजाब एंड सिंध बैंक एमडी एंड सीईओ. आज हम चंडीगढ़ में एक टूर प्रोग्राम में आए हैं. वेरियस कार्यक्रम इस प्रोग्राम के तहत हम कर रहे हैं. तो पहले जो हमने आज कार्यक्रम रखा था वो था कि आज एयरपोर्ट रोड में एक हमने ब्रांच इनॉग्रेट किया. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक 1000 करोड़ बिजनेस से ये ब्रांच इनॉग्रेट हुआ. एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों के लिए. पर्पस ये है कि हम ब्रांच एक्सपेंशन जब कर रहे हैं, और पंजाब में हमारा खासियत ये है कि पंजाब में 640 ब्रांचेस हैं. तो nearly 40% of the network of the bank is in पंजाब. तो इसको देखते हुए, पंजाब का इंपॉर्टेंस देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि नए नए एरियाज में हम ब्रांच खोलें, और एयरपोर्ट रोड की ब्रांच के माध्यम से हम नया कस्टमर्स उस एरिया का, उस कमांड एरिया का, उस एरिया का हम कस्टमर को और नज़दीक पहुंचेंगे. हम उम्मीद है कि टीम चंडीगढ़, मेरा एफजीएम बैठे हैं साथ में, मेरा जोनल हेड्स इधर बैठे हैं, एचओ का स्टाफ बैठे हैं, सब मिलकर हम चाहते हैं कि ब्रांच और भी खोलें जहाँ जहाँ स्कोप है, और वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स को हम कैटर करें. सो एक 1000 करोड़ ऑफ बिजनेस से ब्रांच इनॉग्रेट करना ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है. तो हम अच्छा लग रहा है कि हम आज को हम इनॉग्रेट कर पाए. दूसरा, हम कुछ एम्प्लॉय सेंट्रिक, हमेशा बैंक तो सिर्फ कस्टमर्स के भी इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयज भी इम्पोर्टेंट है. तो उस एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी से देखते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वुमेन एम्प्लॉयज के लिए, जो बच्चों को घर में छोड़ के आना पड़ता है, और एक प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए उनको तकलीफ होता है. तो हमारा एफजीएम मिस्टर चमनलाल के नेतृत्व में हमने यहाँ पे आज एक क्रेश इनॉग्रेट किया, जिसमें हमारा स्टाफ के बच्चे यहाँ पे जब वो काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनका बच्चे की साथ में है ताकि उनका टेंशन ना हो. तो एक बड़ा मूव है ये, बैंक की तरफ से इनिशिएटिव है कि एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी, और पर्टिकुलरली वुमेन एम्प्लॉयज जिसका चैलेंजेस और ज़्यादा हैं, उनको हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप करियर भी कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी अच्छी तरह बच्चे को देखभाल कर सकते हैं. तो वो भी हमने इनॉग्रेट किया आज. तीसरा हमने आज इनॉग्रेट किया, आप जानते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी. आज की डेट में कस्टमर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं बैंकिंग सिस्टम का. तो कस्टमर सेंट्रिसिटी का देखते हुए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवाईसी. आज आप जानते हैं कि बहुत सारे रिस्क्स बढ़ रहा है सिस्टम में, न्यू अकाउंट्स, डिजिटल अरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी. तो आप लोग तो रोज इसका अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे. तो हमारे पास ये एक मुद्दा था कि ऑपरेशनल रिस्क कैसे घटाया जाए. ऑपरेशनल रिस्क, अकाउंट खोलने का जो केवाईसी और ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को और भी स्ट्रीमलाइन किया जाए रेगुलेटर के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. तो हमने आज यहाँ पे इनॉग्रेशन किया कि
जितने भी अकाउंट्स पूरा इंडिया में खुलेंगे उसका एक्टिवेशन बैकएंड से होगा। और इसका एडवांटेज ये है कि ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स काफ़ी प्रोफेशनल होगा, काफ़ी डेटा एक्यूरेट होगा। और एक एडिशनल लेयर हमने बनाया ताकि क्रॉस चेक हो अकाउंट्स का, जो डेटा हमारा पास आए, मोबाइल नंबर्स क्रॉस चेक हो, ईमेल नंबर्स क्रॉस चेक हो, ताकि बैंक में एक क्वालिटी कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो, इसको हम सुविधा दे पाते हैं। तो ये कासा बैक ऑफिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है बैंक की तरफ से। ये नॉट ओनली आरबीआई का कंप्लायंस भी एड्रेस करेगा, बट ऑल्सो कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस और स्मार्ट होगा। हम टैब्स के माध्यम से पेपरलेस ऑनबोर्डिंग करते हैं। आपने सुने होंगे कि पेपरलेस बैंकिंग एक मुद्दा होता है, तो हम भी इस बैक ऑफिस के दौरान एक और एडिशनल फीचर रखा, कस्टमर्स एक ब्रांच का ऑफिशियल कस्टमर तक पहुंचे, सिर्फ टैब लेके जाएं, ऑनलाइन सारे वीडियो केवाईसी हो जाए, पेपर ऑनबोर्डिंग हो जाए, कोई पेपर जो है सारे आपका डोर स्टेप में हो जाए और बैक एंड से अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। कस्टमर को कैसे समझाएगा? कस्टमर को हम ये बताएंगे कि देखिए, आप पहले तो आपको ब्रांच में आना पड़ता था, ब्रांच में आके भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रांच में आके नहीं कर सकते। सुविधा ये है कि अब मान लीजिए आपका टाइम नहीं है ब्रांच में आने का, लेकिन आप एक वैल्यूएबल कस्टमर बन सकते हैं। आप फोन किया मैं, तो आप अगर आ सकते हो, तो पहले क्या होता था, आपसे बहुत सारे कागज साइन किया जाता था, फिर आपको ये फोटोकॉपी दीजिए, उसका फोटोकॉपी दीजिए, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखिए, फिर एक पेपर बनता था। वो पेपर वो स्टाफ ले जाता था ब्रांच में, उसको पंच करता था मैन्युअली, फिर अकाउंट एक्टिवेट होगा। इसका सुविधा ये है, एक टैब लेके आपके पास आएंगे, सारे डिटेल्स उस ऑनलाइन आपका, उसी में आप नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, पेशा बताएंगे, इनकम बताएंगे, जो भी डिटेल्स चाहिए होता है, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, सब ऑनलाइन वेरीफाई होता जाएगा आपका सामने ही, ओटीपी बेस्ड, तो आपका सामने ही सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपका फोटो, अगर आप नया कस्टमर है तो आपका फोटो ऑनलाइन वीडियो केवाईसी, उसको हम तुरंत फोटो उठा लेंगे, आपको फोटोग्राफ भी देना जरूरत नहीं है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक सुविधा, लाभजनक एक प्रोसेस है जिससे कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो सके। तो ये कासा जो बैक ऑफिस हमने बनाया, पीएसबी कनेक्ट इसका नाम है, उसके साथ ये इंटीग्रेटेड है। तो दिस सैलरी अकाउंट्स, क्वालिटी कस्टमर्स, ये आप जब ब्रांच में भी जाएंगे ये सुविधा वहां पे भी होगा। मान लीजिए आप ब्रांच में भी गए, आपके पास टाइम था, ब्रांच में भी वो टैब यूज करके खोल सकता है। तो ये था। एक और विषय था, आप जानते हैं कि, और ये हम सारे पंजाब में सेंट्रिक कर रहे हैं ताकि पंजाब का भी एक इम्पोर्टेंस हम दिखा पा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब से भी आगे? एक और पॉइंट है, तो उसमें आता हूं। तो एक और मुद्दा है, देखिए कि लर्निंग, आप जानते हैं कि ट्रेनिंग अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर में। स्टाफ को अपना ट्रेनिंग के माध्यम से अपडेटेड रहना पड़ता है नॉलेज में। तो हम पंजाब में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, आज इनॉग्रेट हुआ विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मेन मुद्दा थीम रखा हुआ है फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री है और पंजाब सेंट्रिक भी है। तो हमने सोचा कि बैंक में ऐसा एक सेंटर बने जहां पे लोन का जो ट्रेनिंग देना होता है स्टाफ के लिए, कि कैसे सेक्टर्स में कैसे देखा जाता है, पेपर वर्क कैसे कम किया जाए, तो एक ट्रेनिंग कैपेसिटी बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग कॉलेज, उसका नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, अभी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट्स के ऊपर हम कैसे एमएसएमई यूनिट्स को फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये मुद्दा हम पंजाब सेंट्रिक रखा है, ताकि ये, बिकॉज हम इतना ब्रांचेस इधर है पंजाब में, चंडीगढ़ में, सब मिलकर 640 ब्रांच है, 50,000 करोड़ का बिजनेस है। तो ये सब देखते हुए हमें चंडीगढ़ बेस्ड एक ये सुविधा दिया, ताकि यहाँ स्टाफ भी बहुत है पंजाब में, तो उसका लोकलाइज ट्रेनिंग मिल जाए। दे डोंट हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली, पूरे वहाँ जाओ 2 दिन, उसका आने जाने का टाइम चला जाता है। तो सेंट्रिक, पंजाब सेंट्रिक एक ट्रेनिंग कॉलेज हम बनाए। तो और अभी उसके बाद शाम को हमें आज एक जनरल स्टाफ को एड्रेस करेंगे, टाउन हॉल मीटिंग अरेंज किया गया है, यहाँ पे काफी स्टाफ आएंगे, जनरल स्टाफ को मोटिवेशन। मेन मुद्दा क्या रखा है वैसे टाउन हॉल मीटिंग है? देखिए, अल्टीमेटली कस्टमर सेंट्रिसिटी इज द मेन मुद्दा है वहाँ पे। टीम वर्क,
कस्टमर सेंट्रिसिटी की हिसाब से आप देखेंगे, बैंक जो भी विजन रखता है उस कस्टमर को बीच में रख के, सेंटर में रखते हुए हम विजन रखते हैं। तो कस्टमर्स को कैसे सुविधा दिया जाए, क्या क्या एनेबलर्स हम दे रहे हैं स्टाफ को ताकि वो कस्टमर्स को दे पाए, बैंक का प्रोसेसिंग सेंटर्स कैसे और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, डिजिटल लेंडिंग, डिजिटल प्रोसेसेस कैसे हम एडवांस कर रहे हैं ताकि स्टाफ का नॉलेज बढ़े। अगर स्टाफ का नॉलेज बढ़े, जो हम हेड ऑफिस से हम जो प्रोसेस होता है हम एफजीएम से डिस्कस करते हैं, एफजीएम फिर जोनल हेड से ब्रांचेस, एक हायरार्की से जाता है। कभी कभी हर चीज पहुंचता नहीं है डायरेक्ट, तो टाउन हॉल मीटिंग में मास 1000 लोग बैठे हैं, आप लोग हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो मिसिंग पॉइंट से स्टाफ पकड़ लेता है कि ये हम सुविधा दे रहे हैं। जितना हम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे उतना कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। स्टाफ को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, स्टाफ को प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे, नया नया टेक्नोलॉजी क्या क्या लाए हम बैंक ताकि कस्टमर को बेनिफिट हो, वो हम बताएंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के ऊपर हो सकता है, डिजिटल लेंडिंग के ऊपर हो सकता है, सैलरी अकाउंट्स, जो भी है, जो भी बैंकिंग का सुविधाएं हैं, ये सारे सुविधाएं हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म में करके सबको बताएंगे। पंजाब से क्या बिजनेस करते हैं, टारगेट क्या है? देखिए, पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। पंजाब का भी इंक्लूडिंग चंडीगढ़, पंजाब का भी 50,000 करोड़ ऑफ बिजनेस है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हर साल 15% से ग्रो करेगा। और एक बिकॉज वी आर इन पंजाब स्टेट, हम तीसरा लार्जेस्ट बैंक है इन पंजाब इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, तो हमारा भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, अब हमारा बैंक का पंजाब स्टेट में 58% ब्रांचेस है इन द रूरल सेक्टर, हाईएस्ट amongst all the public sector banks. Our branch in the rural segment is very high. That means हम deeply penetrated है रूरल सेगमेंट में। तो हम चाहते हैं कि पंजाब में ये जो रूरल सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, वहां तक हम और भी अच्छी तरह से पहुंचे और मैसेजिंग करें कि गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विकसित भारत का जो स्कीम्स है, ओवरऑल विकसित भारत का जो गोल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स, मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप, स्टार्टअप, सो मेनी स्कीम, विश्वकर्मा, बहुत सारे स्कीम्स है, पीएमजेडीवाई अकाउंट्स, पीएमएसबीवाई, पीएमजे, जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, वो हम पंजाब का आम सिटीजन तक हम पहुंचने के लिए ये प्रयास रहता है हम लोगों का। पंजाब में हम बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और हमारा बैंक का बहुत अच्छा पहचान है इस एरिया में। और इसी को देखते हुए हम और डीप बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरा टीम सब यस, हाँ, देखिए, साइबर सिक्योरिटी दो पार्ट से होता है, मींस मिटिगेशन रिस्क का जो है। एक तो है जो हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्राइव कर, टेक्नोलॉजी यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हेड ऑफिस में हम काफी नया नया सिस्टम्स इंप्लीमेंट किया। जैसे म्यूल हंटर है, जैसे ह्यूज ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंट, जो हम देखते हैं कि देखिए कोई कस्टमर का एक बिजनेस, जब कस्टमर ऑनबोर्ड होता है वही says कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, हम आइडिया लगा लेते हैं कि इस बिजनेस में कितना टोटल बिजनेस का इनका वैल्यू होगा, एक साल का सेल कितना होगा। अगर हम देखते हैं अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत गुना उसके ज्यादा हो रहा है, तो हमें सस्पिशन होता है, तो हम इसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि हम कस्टमर को पूछेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन सही हो रहा है क्या, आपका मुताबिक हो रहा है क्या, आपका जो बिजनेस है उस या कोई और चीज ट्रांजैक्शन आपका थ्रू हो रही है। अगर कस्टमर हमको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देते हैं तो हम उसको फिर मतलब अकाउंट ऑपरेशंस नॉर्मल कर देते हैं। जैसे आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे में हमें क्या करना है, हम स्टाफ को ये बताएंगे, टाउन हॉल मीटिंग में बताएंगे। अगर कोई हमें कोई कस्टमर ब्रांच में आके पैनिक होके कोई फिक्स डिपॉजिट तोड़ने का स्थिति दिखाते हैं, और आप थोड़ा होशियार रहिए, उनसे कोशिश करिए बताने पूछने के लिए, बिकॉज ये प्राइवेट मैटर है, कोशिश, लेकिन हमारा फर्ज जाता है उसका, बिकॉज ब्रांचेस पता चल जाता है कौन कस्टमर कैसा है, डेली वो आ रहा है बैंक में। तो कोई अगर सस्पिशियसली कोई अकाउंट में ज्यादा पैसा
निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको स्टाफ को ये बोलते हैं उनको एम्पैथेटिकली पूछिए, और पूछने के बाद अगर उनको आपको लगता है कि ही इज अंडर सम कंट्रोल जो इलीगल है, उनको थोड़ा सा डिले कराइए प्रोसेस को, ताकि वो उससे हट जाए। और हमने 1-2 केसेस में हमारा ब्रांच स्टाफ ऐसा बचाया भी लोगों को, हमने खुद देखा है कि जस्ट बाय डिलेइंग अ प्रोसेस देन द कस्टमर केम एंड थैंक द ब्रांच, और हम लोग डिजिटल अरेस्ट में थे, आपके हिसाब से हमने बच गया, मेरा इतना पैसा बच गया। तो ये कस्टमर की तरफ से भी है, कस्टमर को हम बताएंगे कि लीगली देयर इज नो सच प्रोसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट, ये एकदम इलीगल है। और स्टाफ को हम बताएंगे कि आप थोड़ा होशियार रहिए, एम्पैथेटिकली सिंपैथेटिकली कस्टमर से डील करिए। ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, हमारा घर में भी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, बिकॉज ये सिचुएशन इतना, ये लोग कमर्शियली और प्रोफेशनली ये पूरा मैनेज करते हैं, ऐसा लगता है एक्चुअल्स ऑफ रियल है, विच वी हैव टू बी केयरफुल। और हम I4C एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस है, FRI फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर मींस बहुत सारे मोबाइल नंबर्स आर इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एजेंसी, जो मोबाइल नंबर्स यूज होता है फॉर सच न्यू अकाउंट्स ट्रांजैक्शन, तो देयर इज अ रजिस्ट्री क्रिएटेड। तो हम जब अकाउंट ऑनबोर्डिंग करते हैं या हम स्कैन करते हैं कि ऐसा मोबाइल नंबर हमारे बैंक में तो नहीं है, ठीक है, तो वो स्कैन करके हम देखते हैं, हो सकता है मोबाइल नंबर चेंज हो गया, पहले वो नंबर यूज हुआ था गलत तरीके से, अभी ठीक हो गया, तो लेकिन एनहांस ड्यू डिलिजेंस बोलता है, ये EDD एक प्रोसेस है। जब अगर हमारे पास ये स्कैन करके आता है कि इस कस्टमर के पास ये मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर उस गवर्नमेंट का नेगेटिव लिस्ट में है, तो हम उनसे पूछते हैं आपका बिजनेस के साथ क्या करते हैं, वो घर पहुंच जाएंगे, देखेंगे वो ठीक ठाक है कि नहीं, कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस कर, अगर सब ठीक है तो दे विल कंटिन्यू द प्रोसेस। तो बहुत सारे प्रोसेस हम और हम अभी RBI का भी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चालू हुआ है, गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया आज, उन्होंने भी ये बहुत सारे वीडियोस RBI की तरफ से बनाया है ऑन दिस साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अरेस्ट। हम भी आज टाउन हॉल मीटिंग में सारे ये दिखाएंगे। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अवेयरनेस नहीं होगा कस्टमर साइड में भी और स्टाफ साइड में, दोनों साइड में अगर अवेयरनेस होता है तो ये रिस्क धीरे धीरे जाएगा। तो हमारा एडवाइस होगा कस्टमर्स को, कोई अननोन नंबर्स आए तो उसको थोड़ा स्कैन करके उठाएं, OTP कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोई थ्रेट में ना आए, अगर थ्रेट में कोई आता है तो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं उसको बताने का और कंसोल करना है, ये सब। आगे भी पंजाब के लिए कोई और ग्रोथ के लिए, देखिए पंजाब तो हमारा हार्ट है बैंक का, और पंजाब अच्छा काम कर रहा है, ग्रोथ तो फ्यूचर होगा। मैं जैसे अभी जस्ट बोला कि फ्यूचरिस्टिक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 to 20% ग्रोथ इस पंजाब स्टोरी से होगा। नए नए सेगमेंट्स में हम जा रहा है। हम पंजाब को देखिए 3-4 इंस्टीट्यूशन से हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं ISB मोहाली के साथ, जो हम स्वनिधि कस्टमर्स जो पंजाब स्टेट का एक बहुत इनोवेटिव हम काम रिसर्च कर रहे हैं, वो बाद में हम इसको प्रकाश करेंगे क्या फिर रिजल्ट है। इनोवेशन ये है कि पंजाब स्टेट का जो स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम था, उसमें जो अच्छा लोन लिया, लोन वापस किया, फिर लोन लिया, फिर वापस किया, जो अच्छा कस्टमर्स है उनके ऊपर हम एक स्टडी कर रहे हैं कि इनको और लोन देने के से वो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ा रहा है क्या। तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आप जानते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, उसके साथ कोलैबोरेशन करके हम ये रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च का और हम ये देखा, इनिशियल ये देखा कि अगर कोई 10,000 लिया, कोई 20,000 लिया, कोई 50,000 लिया, उसको हमने 1.5 लाख रुपया भी दिया, वो वापस किया। तो दैट मीन्स अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो एक्चुअली बेनिफिट लेना चाहता है बैंक लोन्स का, और उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, उनको ट्रेनिंग दिए जाए, तो बैंक का लाभ है और कस्टमर को भी लाभ है, वो अपना बिजनेस खुद कर पा रहे हैं। तो ISB मोहाली के साथ एक बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, जो एग्रीकल्चर पार्ट में आप सब जानते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो उनके पास ना एग्रीकल्चरिस्ट बहुत आते हैं ऑन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वी आर क्रिएटिंग, वी हैव डन अ प्रोग्राम कोलैबोरेशन जहाँ पे हम उनको टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर पार्क बनाने के लिए मदद करता है। वहाँ पे क्या होता है, सारे एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स एक टाइम में उस पार्क में जाता है, वहाँ से इनोवेशंस, क्या क्या नया सब्जेक्ट्स आ रहा है, क्या क्या नया मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर है, टूल्स क्या यूज हो रही है, ये सब चीज एक जगह
वो डिस्प्ले करता है। तो उसको हम कोलैबोरेशन करेंगे तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी फायदा हुआ और हम एक इनडायरेक्टली हम पंजाब का फार्मर्स को एक हेल्प भी हो जाता है। तीसरा एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, उसके साथ भी हम स्टार्टअप इंक्यूबेशन का MSMEs का हम उनके साथ भी कोलैबोरेशन में कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नया करें पंजाब स्टेट के लिए। हाँ, एक स्कॉलरशिप ISB मोहाली को हम एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप हम स्पॉन्सर करते हैं। जो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है 7.5 लाख तक हम स्कॉलरशिप खुद एज अ बैंक हम अच्छे स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। बिकॉज हाई मैनेजमेंट बिग इंस्टीट्यूट्स में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो एक और बहुत अच्छा एक स्कीम हमने जो निकाला है कोलैबोरेशन का, वो है पूर्णतः एक हमारा वेल्थ एडुटेक पार्टनर है, वो सिर्फ MSME कस्टमर्स को कैसे बिजनेस करना है उनको मदद करता है। ट्रेनिंग फॉर MSME एंटरप्रेन्योर्स मीन्स हम उसको स्पॉन्सर करते हैं कि आप जानते हैं MSME कस्टमर्स का कागज का बनाने में उनको तकलीफ होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, दे आर नॉट इक्विप्ड। वो अपना बिजनेस जानता है लेकिन कागज बैंकिंग की बैंक का सिस्टम के हिसाब से कागज बनाना उनके लिए तकलीफ होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पूर्णतः क्या करता है, ये हम क्लासेस करते हैं वो वीक 2 दिन 3 दिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और वेरियस लैंग्वेज इंक्लूडिंग पंजाबी, वो ट्रेनिंग उस लैंग्वेज में भी होता है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है एक MSME कस्टमर को बैंक के साथ डील करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी इनोवेशन आल्सो वी आर डूइंग फॉर पंजाब में हमने काफी किया ये ऐसा एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत करना। तो ये है और भी हम करेंगे, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपके कस्टमर हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कस्टमर को हम बोलेंगे कि हम पंजाब एंड सिंध बैंक का मोटो है वे सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। सर्विस में हम सबसे अच्छे सर्विस देने के लिए हम कमिटेड हैं। नंबर 1, सतर्क रहें कस्टमर्स, कोई भी गलत फोन या मैसेज को लिंक क्लिक ना करें। जो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसको मत करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, बैंक का नियरेस्ट बैंक में जाएं और आपका हेल्प लीजिए। डिजिटल अरेस्ट कुछ चीज होता नहीं है, देयर इज नथिंग इन लॉ जो डिजिटली कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई आपको धमकी ऐसा दे रहा है या आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट, प्लीज आप अथॉरिटी उसमें है प्लस बैंक के आके उसको समझ लीजिए कि क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप भाग दौड़ के कुछ गलत हो तो आपको नुकसान हो जाए। तो सतर्क रहना, OTP शेयर नहीं करना, फोन कॉल्स को थोड़ा सतर्क रहना और अवेयरनेस रहना, और बैंक का जितना भी गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है उसका बैंक में, सरकारी बैंक में आके लाभ उठाए। थैंक यू।